Hi everyone, a warm welcome to today's class. I am Harimohan Sharma and today I am going to take a lecture on ODE, Ordinary Differential Equation. So I will be teaching some basic concepts of the ODE and definition of ODE, formation of ODE and order and degree of the ODE. So let's begin with the basic concepts of Ordinary Differential Equation. तो स्टूडेंट्स अब हम डिफाइन करने वाले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करने वाले हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ए वेरिएबल whose value is assigned, then it is called independent variable. And a variable whose value is obtained corresponding to independent variable then it is called dependent variable. Like in the example y is equal to f of x. Here we are free to choose x and for different values of x we get different values of y. Like for example y is equal to x plus 2. यहाँ पर हमारे लिए अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3 आ जाता है। तो हम x को चूज करने के लिए फ्री हैं और उस हिसाब से हमारे y की वैल्यूज भी डिफर कर रही हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पर डिपेंड करता है? ये x पर डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार वी टेक x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 then also y is dependent on x. So this is the concept of dependent and independent variable. Now I am going to define ordinary differential equation. An equation between dependent variable independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called ordinary differential equation. For example, dy over dx plus 2xy equal to cos x. So here in this example, here y is our dependent variable, x is independent variable, and dy over dx is the derivative of dependent variable with respect to independent variable. And there is a relation between all these variables which is called a equation. And और ये इक्वेशन क्या कहलाती है? हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1. For example 1 2 d2y over dx square plus 2y dy over dx equal to x cos x. Similarly, third equation del z over del x plus 2x del z over del y equal to 0. Equation number 3. So these all are our differential equations. दो इसमें इस इक्वेशन में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज y एंड और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज x. So these are our differential equations. Now I am going to define ordinary differential equation. So ordinary differential equation. So
A equation in which only unique independent variable contains the total derivative is called ordinary differential equation. Like in the examples, dy over dx plus 2xy is equal to cos x. In this equation, only we have only one unique independent variable, which is x. So it is called our ordinary differential equation. And what is partial differential equation? Partial differential equation. In this equation, we have more than one independent variable, right? हमारे पास डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल 2xy डेल जेड ओवर डेल y equal to 0. In this equation, we have more than one independent variable, which is x and y. Here, हमारे पास z is equal to function of x and y. ये जो z है x और y का फंक्शन है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी कि दो, जिसके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, और हम इसको एक की बजाय दो भी, हम x की और x और y की बजाय कोई और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक t एंड p. तो ये हमारी होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ODE, ordinary differential equation. The formation of ODE. If I am given a relation like f of x, y, c1, c2, dot 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 cn equal to 0. Equation number 1. Here x is our independent variable and y is dependent variable, and c1, ci are arbitrary constants. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं. तो डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एफ ऑफ, डेरिवेटिव लेने पर हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश c1 c2 डॉट 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 cn, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2. कैसे, जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है उतनी बार इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश c1 c2 डॉट 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 cn. क्वेश्चन नंबर 3 डॉट डॉट डॉट, हम इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेते हैं x वाई वाई डैश वाई डबल डैश डॉट 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 y एंड c1 c2 डॉट 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 cn. क्वेश्चन नंबर n+1. यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास n+1 2 3 डॉट 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 n+1 इक्वेशंस बनेंगी, और n+1 इक्वेशन से हम c1 c2 डॉट डॉट cn की वैल्यूज को गायब कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वो कहलाएगी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फाई ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश डॉट 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 वाई एन इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन हमारी फाइनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. तो इसके लिए एग्जांपल करते हैं.
हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन एक्स वाई प्लेन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सर्कल्स का एक्स वाई प्लेन में सर्कल्स की इक्वेशन आनी चाहिए, जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं विच आर g, f एंड c। तो हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स डिफरेंशिएट फर्स्ट 2x प्लस 2y y डैश। मैं y डैश को dy और dx को क्या लिखता हूँ, y डैश। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देखते हैं क्या होता है। 2g प्लस 2f y डैश इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर और सो लेट्स लीव इट ब्लैंक। हम देखते हैं कि इसमें से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं एवरी टर्म्स में। तो हम इसमें 2 को डिवाइड करते हैं, x प्लस y y डैश प्लस g प्लस f y डैश इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस इसका डेरिवेटिव f y डबल डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। सो हम यहाँ से f की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं कि f इक्वल टू माइनस 1 प्लस y डबल डैश प्लस y डैश टू द होल स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। तो यहाँ पर हमारी f की वैल्यू हमने ले ली। तो इसके बाद हम इस इक्वेशन हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना था, तो इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विच इज 0 प्लस ये दिस इज आल्सो इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, सो वी विल डिफरेंशिएट इट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अगेन y स्क्वायर, दिस इज y नॉट y स्क्वायर, दिस इज y डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस f y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज द थर्ड टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें f की वैल्यू एक ज़्यादा आ रही है, तो f की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास सिंपली y डैश और y ट्रिपल डैश इनकी फॉर्म में ही एक इक्वेशन बचेगी जो कहलाएगी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर y इंटू y ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश इंटू y डबल डैश प्लस द वैल्यू ऑफ f इज माइनस दिस प्लस becomes minus, this is minus here, minus 1 plus y into y double dash plus y dash to the whole square upon y double dash into this, here it is y double dash, so we will put it here equal to 0। तो यहाँ से y डबल डैश को पूरे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी y इंटू वाई डबल डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश इंटू वाई डबल डैश टू द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश टू द होल स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन एक्स वाई प्लेन, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारी हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बच्चों बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक फॉर एग्जांपल dy over dx plus 2xy equal to 4x। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज 1 हियर, बिकॉज हियर हमारे पास y का एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। अब सेकंड
d2y ओवर dx² प्लस 2xy इक्वल टू 0। इसमें हमारा ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। एंड अब y इक्वल टू a e रेज़ टू पावर bx प्लस c। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये इक्वेशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका ऑर्डर हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए y इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू पावर bx इंटू ई रेज़ टू पावर c। हम देखते हैं कि a और ई रेज़ टू पावर c दोनों एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनाएंगे विच इज d। तो y इक्वल टू d ई रेज़ टू पावर bx, ये हमारा एक नई इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन की हेल्प से हम देखते हैं कि इसमें इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है d और b, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आया कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू का ऑर्डर ऑफ ODE। जैसे कि हमने पिछले बार एग्जांपल में देखा था कि y इक्वल टू d ई रेज़ टू पावर bx, जब हम इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें इसका ऑर्डर आएगा 2 और विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन नंबर दिस नंबर 1। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द ODE is called the degree of the ordinary differential equation, provided the powers of the derivative are in natural number। तो पावर्स डेरिवेटिव की पावर हैं वो सारी की सारी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी पावर 2/3 हो गई, 3/2 हो गई, ये नहीं होना चाहिए। और इसकी एक और इसमें एक कंडीशन ये और है, जो डेरिवेटिव है वो है रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और ट्रांसपेरेंट फंक्शंस से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1/dy/dx हो गया, ये इसको हम इसके लिए डिग्री काउंट नहीं होगी। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल के लिए y∭+ √y' इक्वल टू 0। तो हमें इसकी डिग्री निकालनी है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो इसका ऑर्डर तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि y∭ से 3 बार उसका डेरिवेटिव लिया गया, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन इसकी डिग्री के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो y' है वो फ्री होनी चाहिए, किससे? अंडर रूट से। तो अंडर रूट से फ्री करने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? y∭ इक्वल टू -√y', इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? y∭ इक्वल टू y' टू द होल स्क्वायर इक्वल टू y'। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो इसके पास डिग्री क्या हो गई? 2। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि y∭, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया? 2 हो गया क्लियरली। पर लेकिन इसकी डिग्री के लिए हम देखते हैं कि y तो अंडर रूट में है, लेकिन y∭ क्या है? फ्री ऑफ अंडर रूट है। तो इसके लिए हमें इसके और डिग्री क्या हो? इसकी डिग्री को लिखने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि y∭+ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है x का। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं कि y∭+ प्लस x² 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी सबसे पहले इसका ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर क्या है? इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसके ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन और इसकी डिग्री में क्या हो गया? इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री में क्या हो गई? 1 हो गई। इन द फोर्थ एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जो y है उसको इंटीग्रेशन में लिया गया है। ठीक है। y को इंटीग्रेशन में हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन से फ्री करना होता है हर चीज को।
मतलब कोई भी इक्वेशन को हमें इंटीग्रेशन से फ्री करना होता है, उसके बाद ही हम उसका ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y इस इक्वेशन का पूरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने के लिए इसको y डबल डैश प्लस तो y ऑफ t इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू t हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, सो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन बची। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 2, क्लियरली इसका ऑर्डर कितना है 2 है, लेकिन और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसका हाईएस्ट द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री। तो इसकी पावर कितनी 1 है, तो 1 इसकी डिग्री भी क्या होगी 1। थैंक यू सो मच।